Assalamualaikum dear student, my name is Engineer Tokir Akhtar. I am teaching you Advanced Fluid Mechanics. In our today lecture, we will discuss about the model analysis and we will see what is model, what is prototype and what is basically the similitude types of similarities. In similarities, we will see geometric similarity, kinematic similarity, dynamic similarity, and we will also see some forces which are acting in a fluid. Some forces are inertial forces, viscous forces, gravitational forces, surface tension, and elastic forces. We will also see what are the dimension numbers. Some of dimensional numbers are Reynolds number, Euler number, Mach number, Froude number, Weber number, and we will also see the relationship between these number. And after this, we will see what is the model law or similarity law. These are basically Reynolds model law, Froude model law, and Weber model law. After this, we will discuss about the steady uniform flow in open channel. In this, we will see what is the concept of boundary shear stress, and we also will see Chase's and Manning's equations, and also their limitation for the application in case of rectangular as well as in case of trapezoidal section channel. We will also see what are the factors which affect upon the roughness coefficient, and we will also see what are the incompressible flow around a body, laminar and turbulent boundary layer, flow around a flat plate, and we will also see some forces which are drags and left forces. Model analysis. For predicting the performance of hydraulic structure may be a dam spillway or a hydraulic machine such as turbine pumps. Before actually constructing or manufacturing model of structure or machine are made. These are basically tests, and these tests are performed on them to obtain the desired information. इसमें बेसिकली होता ये है कि अगर हम चाहते हैं हम कोई एक डैम बनाते हैं या कोई स्पिलवे बनाते हैं या कोई बैराज या वायर कुछ भी कोई चीज़ भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कोई भी पंप टरबाइन कोई चीज़ जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ये नहीं करते कि हम उसको एज पर साइड जाकर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हम उससे उसकी डिज़ायर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डिज़ायर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होता है कि ये इसके अंदर अगर कोई डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज कितना पास होगा, क्या हमने स्लोप रखनी है, स्लोप कितनी रखनी है, उसके बाद इसकी कितनी एलिवेशन है, ये सारा कुछ। इससे सिमिलरली हम क्या करते हैं जी, स्मॉल रिप्लिका बनाते हैं एक एक्चुअल स्ट्रक्चर का। एक्चुअल स्ट्रक्चर की एक कापी, आप कापी समझ लें, एक हम कापी बनाते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होती है जो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे होते हैं किसी साइड के ऊपर। सिमिलर उसी तरह का एक हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लैब के अंदर या कहीं पे भी, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी कितनी कोई एफिशिएंसी है, इससे क्या हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। इस बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, ये टोटल प्रोसेस हमारे पास होता है मॉडल एनालिसिस। मॉडल is a small scale replica of actual structure or machine, and the actual structure or machine is called as prototype। जो हमारे पास किसी साइट के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर जो हमारे ऊपर कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, कोई ब्राज है, कोई वेयर है या कोई डैम है, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोटाइप का। अगर उससे सिमिलर हम कोई चीज़ बनाते हैं, यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया गया है, इट इज़ द स्मॉल रेप्लिका ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर, वी विल कॉल इट अ मॉडल। It is not necessary that model should be smaller than prototype. Though in most of the cases it is they may be larger than prototype। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रोटोटाइप किसी स्मॉलर स्केल पे है, हम चाहते हैं कि हम उससे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये भी हो सकता है कि हम मॉडल किसी लार्जर स्केल का बना सकते हैं ताकि हमें ईजिली जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल सके। The study of model of actual machine is called as model analysis। Model analysis is actually an experimental method of finding solution of complex flow problem।
Exact analytical solution are possible only for limited number of flow problem. इसके अंदर ये होता है कि हम जब भी हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए पीछे फ्लो से रिलेटेड फ्लूइड फ्लो इन पाइप्स के अंदर या इसके अंदर जब हम ओपन चैनल के अंदर किसी के अंदर देखते हैं तो हम क्या होता है जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है ना वो बड़ा एक फ्लो के कोई भी प्रॉब्लम है उनको बड़ा ही लिमिटेड होता है। हम क्या करते हैं कुछ एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से, उससे हम क्या कर सकते हैं कि उस जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं फ्लूइड के अंदर उससे हम सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके इसी तरह डिमेंशनल और मॉडल एनालिसिस के कुछ ना कुछ जो हम क्यों करते हैं क्यों उसके क्या क्या फायदे हैं इसको हम देखते हैं। फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डिमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। फर्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द हाइड्रोलिक structure or hydraulic machine can easily predicted in advance from its model। इसमें ये हो सकता है कि ये देखें अब हम चाहते हैं कोई भी हम पहला इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं हम उसका एडवांस में हमें पता होता है कि इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, इससे हमें क्या क्या आउटपुट मिलेंगे। ये हमें मॉडल की जो प्रोटोटाइप है उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ इसका क्या हो जाता है जी हमें अंदाज़ा हो जाता है। With the help of dimensional analysis, a relationship between the variable influencing a flow problem in terms of dimensionless parameter is obtained. This relationship help in conducting test on model। इसके अंदर क्या होता है जी हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं जैसे कि वेलोसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया या एरिया हो गया, जो हमारे पास किस तरह का कोई एरिया ट्रेपेजॉइडल है, रेक्टेंगुलर है, किसी तरह की कोई शेप है, उसके ऊपर फिर उसकी स्लोप क्या है, जितने भी वेरिएबल कोई या पेयर लगाते हैं उसके अंदर हम देखते हैं शेप फैक्टर क्या है या बटमेंट है, बटमेंट के अंदर उसकी टाइप्स कौन सी है, ये उसके बाद देखते हैं जो आर्चेस है आर्चेस की कौन सी टाइप्स है। कोई भी किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर हम बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो जो जिस तरह के जो भी वेरिएबल उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं हम उसको क्या करते हैं डिमेंशनल पैरामीटर की सूरत में हम उसको हासिल करते हैं। फिर उससे क्या हो जाता है कि हमें जो अपना टेस्ट है रिक्वायर्ड टेस्ट वो हमें ऑब्टेन करने में आसानी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा कि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जो हमें बेहतर होते हैं, कुछ ऐसे भी डिज़ाइन होते हैं जो फेल हो जाते हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल डिज़ाइन हमें मिल सकता है इससे, और जो डिज़ाइन होता है वो हमें सेफ डिज़ाइन भी मिल सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ द मेरिट ऑफ अल्टरनेटिव डिज़ाइन कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ मॉडल टेस्टिंग। द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सेफ डिज़ाइन में बी फाइनली अडॉप्टेड। Fourth one is the test performed on the model can be utilized for obtaining in advance useful information about the performance of prototype only if a complete similarity exists between model and prototype। इसके अंदर ये देखें अगर सिमिलरिटी है, ये नहीं हो कि हमारे पास एक मॉडल डिफरेंट टाइप का है उसके अलावा प्रोटोटाइप डिफरेंट टाइप का, हम चाहें कि उसके अंदर वो दोनों सेम टेस्ट रिजल्ट्स दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर अगर उनके दरमियान कोई सिमिलरिटीज़ हैं काफ़ी सारे टोटल वो बिल्कुल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारी जो मॉडल और प्रोटोटाइप की है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है। इसके बाद है जी हमारे पास सिमिलिट्यूड टाइप ऑफ सिमिलरिटी। इसके अंदर हम देखते हैं कि सिमिलिट्यूड बेसिकली है क्या। ये हमारे पास है बेसिकली से प्रोटोटाइप और मॉडल में हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो सिमिलर है। उसके अंदर आगे हम चल के देखेंगे कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे जियोमेट्रिक सिमिलरिटी है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी है और डायनामेटिक सिमिलरिटी है। सिमिलिट्यूड इज डिफाइंड एज सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप in every respect, which mean that model and prototype have similar properties or model and prototype are completely similar. Three types of similarity must exist between the model and prototype. They are geometric similarity, kinematic similarity, and third one is dynamic similarity. First of all, what is geometric similarity? Geometric similarity is said to exist between model and prototype
the ratio of all the corresponding linear dimension in the model and prototype are equal. ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के अंदर क्या हो जाता है, जो हमारे पास लेंथ है, अगर कोई विड्थ है या डायमीटर है या एरिया है या वॉल्यूम है, जितनी भी हमारे पास ये जो लीनियर डिमेंशन है ना, ये इसके अंदर क्या हो जाता है कि इसके अंदर में जो अगर हम रेशियो लें मॉडल और प्रोटोटाइप की, वो हम क्या कहें जी, वो दोनों की क्या है जी, सिमिलर है। लेट्स सपोज करते हैं एल एम क्या जी, मॉडल की है एम से, हमारे पास हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे मॉडल को, और पी से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या जी, प्रोटोटाइप को। वेयर इज एल एम इज द लेंथ ऑफ मॉडल, बी एम इज द ब्रेथ ऑफ मॉडल, डी एम इज द डायमीटर ऑफ मॉडल, ए एम इज द एरिया ऑफ मॉडल, whereas Vm is the volume of model, whereas Lp is the length of prototype, Bp is the breadth of prototype, Dp is the diameter of prototype, Ap is the area of prototype, Vp is the volume of prototype. uh, for geometric similarity between model and prototype, there must be some relationship. Relationship is the length of prototype divided by length of model is equal to breadth of prototype divided by breadth of model is equal to diameter of prototype divided by diameter of model is equal to LR. LR is basically scale ratio. If we will see in the relationship between prototype and model, we can see each one is a dimensionless number. LP or LM, this is a dimensionless number. BP or BM, this is also a dimensionless number. Therefore we can say this is equal to some scale ratio. If we want to derive the equation or relationship for area ratio and volume ratio, the relationship should be given as AP divided by AM. As we know, area is length multiplied by breadth, LP multiplied BP divided by AM, LM multiplied by BM. Now, as we know, LP over LM, this is equal to LR, whereas BP over BM, this is equal to LR. We can say this will become equal to LR square. Whereas volume of prototype divided by volume of model, and this volume is basically the L cube, LP divided by LM cube. We can also say this is equal to BP over BM cube is equal to DP over DM cube. We can also say this is equal to LR cube. Second similarity is the basically what second similarity is kinematic similarity. Kinematic similarity means the similarity of motion between model and prototype. Thus, kinematic similarity is said to exist between model and prototype is the ratio of velocity and acceleration at the corresponding point in the model and at the corresponding point in the prototype are same. Since velocity and acceleration are vector quantity, hence not only the ratio of magnitude of velocity and acceleration at the corresponding point in the model and prototype should be same, but direction of velocity and acceleration at the corresponding point in the model and prototype should be parallel. इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास kinematic similarity है, इसके अंदर मुझे देखते हैं कि जो हमारे पास रेशियो है वेलोसिटी की प्रोटोटाइप के अंदर और मॉडल के अंदर, ये हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसी तरह एक्सेलेरेशन भी सेम होना चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं विच हैविंग बोथ वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी वेलोसिटी एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दोनों अगर इम्प्लीमेंट हो रही हो तो हम कहते हैं ये हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सिमिलरली वी कैन से Vp1, it is the velocity of fluid at point 1 in prototype. Vp2 is the velocity of fluid at point 2 in prototype. Point 1 and point 2 are any arbitrary point. These are taken at somewhere. Ap1 is the acceleration of fluid at point 1 in prototype.
AP2 is the acceleration of fluid at point 2 in the prototype, whereas VM1, VM2, AM1, AM2 are the corresponding value at the corresponding point of fluid velocity and acceleration in the model. For kinematic similarity, we must have Vp1 divided by Vm1 is equal to Vp2 divided by Vm2 is equal to Vr. Whereas these are basically the velocity ratio. For acceleration, we must have AP1 divided by AM1 is equal to AP2 divided by AM2 is equal to AR. AR is basically acceleration ratio. VAR was velocity ratio. And we also say the direction of velocity in model and prototype is also same. After that there will be a dynamic similarity. Dynamic similarity means similarity is a similarity of forces between the model and prototype. Dynamic similarity is said to exist between the model and prototype if the ratio of corresponding forces acting at the corresponding point are equal. देखें पहली थी जियोमेट्रिक सिमिलरिटी के अंदर हमने देखा जो लीनियर डिमेंशन है वो सेम है, जबकि हम उसके बाद आया काइनेमेटिक के अंदर जो हमारे वेलोसिटी एक्सलेशन है वो मॉडल और प्रोटोटाइप के अंदर करस्पॉन्डिंग पॉइंट के ऊपर वो सेम होनी चाहिए। इसी तरह डायनामेटिक के अंदर हम देखते हैं जो फोर्सेस हैं, जो करस्पॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो जो मॉडल और प्रोटोटाइप के अंदर हैं वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। और उसके अलावा फोर्स भी हमारे पास जैसे वर्क क्वान्टिटीज़ है, उसके अलावा जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम कुछ इसके अंदर आगे कुछ फोर्सेस देखते हैं इसको समझने के लिए। Dynamic similarity may include FIP. F, as we know, Fi is the inertial forces at the point and the prototype, whereas Fv is the viscous forces at the point. Fg is the gravitational forces at the point and prototype. And similarly, if P is replaced by M, this will become inertial forces at a point in model, whereas viscous forces at a point in model, whereas Fg into M, this is the gravitational forces at the point in the model. We take ratio between the forces of prototype and model. We can say this is also equal to some constant ratio. We name them as Fr is the force ratio, and we also say the direction of corresponding forces at the corresponding point in the model and prototype should be same. We will see what are these forces, types of forces acting in the moving fluid. In the fluid problem, we also discussed these forces. Some of these forces are inertial forces, viscous forces, gravitational forces, pressure forces, surface tension forces, and elastic forces. Inertial forces is basically it is equal to the product of mass and acceleration of moving fluid and act in the direction opposite to the direction of acceleration. It is always existing in the fluid flow problem. इसके अंदर हमने देखा inertial forces, ये बेसिकली ये forces से हमें क्या फिर पता चलता है जी, जो हम इसके अंदर रेनॉल्ड नंबर पढ़ते हैं, फ्राउड नंबर पढ़ते हैं, अगर हमें इस फोर्स का कंसेप्ट है तो हम उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट ये होती क्या इनर्शियल फोर्सेज, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है मास का जो और जो एक्सलेशन का है उसको हम क्या करते हैं जी, इनर्शियल फोर्सेस कहते हैं। और ये फ्लूइड फ्लो के प्रॉब्लम्स के अंदर इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। इसके अंदर अनदर वन इज़ viscous forces. Viscous forces is basically equal to the product of shear stress due to viscosity and surface area of flow. It is present in the fluid problem where viscosity is having an important role to play. इसके अंदर देखें जो हमारे पास कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो विस्कस फ्लूइड होते हैं, कुछ नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं, जैसा ये उसके अंदर हम देखेंगे आगे चल के रेनॉल्ड नंबर और फ्राउड नंबर के अंदर कौन कौन सी हमारे पास फोर्सेस लगती हैं, क्या किसके अंदर विस्कस फोर्सेस हैं, किसी के अंदर हमारे पास जी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं। रेनॉल्ड नंबर के अंदर जो हमारे पास फोर्सेस होती है वो हमारे पास विस्कस फोर्सेस होती है। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये हमारे पास क्या हो जाती है, फ्राउड नंबर के में होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी प्रेशर फोर्सेस, सरफेस टेंशन फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस।
Gravitational forces is basically equal to the product of mass and acceleration. Acceleration, in this case acceleration, is due to gravity of the flowing fluid. It is present in case of open surface flow. Fourth one is the pressure force. Pressure force is equal to the product of pressure intensity and cross-sectional area of the flowing fluid. It is present in case of pipe flow. Fifth one is surface tension force. It is equal to the product of surface tension and length of force of the flowing fluid. And sixth one is the elastic force. Elastic force is equal to the product of elastic stress एंड एरिया ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। इसके अंदर अगर हम देखें, अगर हम प्रोडक्ट लें एक इलास्टिक स्ट्रेस का और एरिया का, तो वो जो हमारे पास जो फोर्स है, वैसे जो हमारे पास फोर्स होती है वो हम देखते हैं क्या होती है हमारे पास प्रेशर, और जो एरिया होता है वो उसका प्रोडक्ट अगर लें तो हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, चूँकि उसको हम प्रेशर फोर्स कहते हैं। अगर हम इलास्टिक फोर्स फाइंड करना चाहें, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो इलास्टिक स्ट्रेस और एरिया का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर हम कुछ, हमारे पास एक फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि ये फोर्सेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और कुछ के अंदर ये भी हो सकता है कि इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर ना हो, और कोई इसके अंदर ये भी हो सकता है किसी फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि कौन एक फोर्स डोमिनेट होती है दूसरी नहीं होती, और जो भी डोमिनेंट फोर्सेस होती हैं वो गवर्न करती हैं द फ्लो ऑफ फ्लूइड को। उसके बाद हम देखते हैं जी डिमेंशनल नंबर। डिमेंशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं जी। Dimensional number are those numbers which are obtained by dividing the inertial forces by viscous or gravitational or pressure or surface tension forces or elastic forces. As this is the ratio of one force to another force, it is will be a dimensionless number. लेकिन जी अगर हमारे पास दो सिमिलर हैं, नोमिनेटर में भी सेम है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो जो उनका एंड रिजल्ट आएगा वो एक डिमेंशनलेस नंबर ही देगा। These dimensionless numbers are also called non-dimensionless parameter. These following are the important dimensionless number. First one is Reynold's number. Reynold number is basically the ratio of inertial forces of flowing fluid to the viscous forces of flow. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RE से। तो अगर हम इसको रिलेशन अगर हम देखना चाहें कि ये हमारे पास किस तरह बनता है, अब हम जानते हैं जी इनर्शियल जो फोर्सेस है हमारे पास, देखा जाए इनर्शियल फोर्सेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइंग फ्लूइड। मास हम जानते हैं जी हमारे पास है, मास इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, वेयर इज एक्सेलरेशन इज द ratio between velocity and time. Here we can also write it rho multiplied by volume divided by time multiplied by velocity. As we know, discharge is the ratio of volume divided by time, and we know discharge Q is equal to AV. We can write rho multiply AV multiply V. We can write it rho AV square, whereas viscous forces is basically the product of shear stress and the area, whereas shear stress is represented by tau multiplied by area is represented by A. As we know from Newton, second law, tau is equal to viscosity du divided by dy. We can simply du divided by dy, these are the derivation of velocity and the linear dimension. We can write also as v divided by L. This can be replaced with mu multiplied v divided by L multiplied by A. अब हम जानते हैं जी रेनॉल्ड नंबर का हम स्टडी कर चुके हैं, ये क्या है जी रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। इनर्शियल फोर्सेस हमारे पास क्या आ गए जी, रो ए वी स्केयर डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस इज इक्वल टू mu v L v divided by L multiplied by A. After simplification we will get this product, and we know if we divide viscosity by density, this is equal to kinematic viscosity VL divided by mu. As we do in case of pipe flow, the linear dimension L is taken as diameter. अगर हम पाइप फ्लो के अंदर केस देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पाइप से पाइप रिलेटेड होता है डायमीटर के, तो इस केस में हम क्या कहते हैं जी लेंथ को यहाँ पे वी एल था, वी एल को हम रिप्लेस कर देंगे वी डी से,
और रिनॉल्ड नंबर ऑफ पाइप फ्लो हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको अगेन इसकी वैल्यू पुट कर दें म्यू की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई बाय डी, डेंसिटी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। ये हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं डिमेंशन, तो ये एक डिमेंशनलेस नंबर हमारे पास अपटेन होगा रिनॉल्ड नंबर का। ये हमारे पास फार्मूला है। जिस तरह ये हम फार्मूला कैसे अचीव करते हैं हम स्टडी में देखते हैं कि हम देख लेते हैं रो वी डी और म्यू, ये हमारे पास उसके अंदर रिनॉल्ड नंबर का फार्मूला देखते हैं। ये हमारे पास एक मेथड है कि किस तरीके से ये रिनॉल्ड नंबर का फार्मूला हमारे पास आया है। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास जो फ्राउड नंबर है, फ्राउड नंबर तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस फ्लूइड टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब हम जानते थे, हम इससे पहले ड्राइव करके आ चुके हैं, जो हमारे पास इनर्शियल फोर्सेस की वैल्यू है रो ए वी स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारे पास उसकी वैल्यू कैसे आएगी, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसके इक्वल एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वेयर एज एक्सप्रेशन इज जी, वॉल्यूम इज द एल क्यूब रो एल क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी। We can also write L cube as L square multiplied by L. L square can be replaced with area, and as the dimension of L square and area are same, we can write rho A L multiplied by G. Now putting the value of inertial forces and gravitational forces in this equation, we will get rho A V square divided by rho A L G. After A will be cancelled by A, rho will be cancelled by rho. The end product we will get is the v square divided by lg. So we take square root, this will equal to v divided by square root of lg. This, if we know the dimension of velocity, length and gravitational acceleration, we can also see Froude number is also a dimensionless number. And third one was the Euler number. Euler number is basically the ratio of inertial forces to the pressure forces. We can see Euler number. Euler number is defined as the square root of the ratio of inertial forces of the fluid to the pressure forces. Mathematically, it can be expressed as U is equal to Fi divided by F3. Square root Fp is equal to the intensity of pressure multiplied by area. Intensity of pressure is represented by P, and we know the value of inertial forces. Inertial forces is equal to rho Av square, rho Av square divided by P multiplied by A. This will equal to rho, A will be cancelled by A, this will become equal to V square divided by P divided by rho. After taking square root, we will get V divided by P divided by density. These three number, Euler number, Reynold number and Froude number, dimensionless number, and after that we will see Weber number. Weber number is also a dimensionless number. Weber number is basically the ratio of inertial forces to the surface tension force. It is defined as the square root of the ratio of inertial forces of the flowing fluid to the surface tension force. Mathematically, it can be expressed as Weber number is equal to the square root of inertial forces divided by the surface tension forces, and we know the value of inertial forces. Inertial forces is equal to rho Av square, whereas Fs is the surface tension force. Surface tension force is equal to the surface tension per unit length multiplied by length. Surface tension is represented by sigma multiplied by L. Now putting the value of Fi and Fs in this equation, value of Fi is rho Av square divided by Fs is sigma multiplied by L. In this equation, A is equal to L square, L will be cancelled by L. We can write it rho L multiplied by V square divided by sigma. After further simplification, we will get V divided by square root of sigma and divided by density multiplied by length. And after that, we will see what is Mach number. Mach number is basically the ratio of inertial forces
to the elastic forces. मैथमेटिकली अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? We can write it m is equal to inertial forces divided by elastic forces. अब जो हमारे पास इसकी वैल्यू है inertial forces की, वो हमें पता है जी, हमारे पास है रो ए वी स्केयर, और जो हमारे पास एफ ई है ये हमारे पास है इलास्टिक फोर्सेस, और हमारे पास इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। जो हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस से जी? के से, और जो हमारे पास एरिया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ये बन जाएगा के ए, एरिया इज इक्वल टू एल स्केयर। अब हम जब इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ एफ आई इज रो ए वी स्केयर डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ एफ ई इज के मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर, वी विल गेट rho multiply by L square multiply by V square divided by K multiply by L square. L square will be cancelled by L square. We'll get rho V square divided by K, and dividing the rho on numerator and denominator, we'll get V square over K divided by rho. After taking square root, we will get V divided by square root of K divided by density. As we know, K over rho is basically equal to C. C is the velocity of sound in the fluid, whereas M is equal to V divided by C. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? एम इज बेसिकली मैक नंबर, ये हमारे पास वी, इसको हम रिप्लेस कर देंगे सी से, तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा वी डिवाइड बाई सी। अगर हम इसको भी देखें, अगर हम डिमेंशन में वी वेलोसिटी है, सी भी हमारे पास वेलोसिटी है, तो दोनों की रेशो लें, तो दोनों का डिमेंशन अगर लें तो दोनों के डिमेंशन सेम आएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा या कोई रिजल्ट आएगा वो एक डिमेंशनलेस नंबर होगा। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ और सिमिलरिटी लॉ। अच्छा, हमने देखा कि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास 3 तरह की सिमिलरिटीज़ थी। ये हमारे पास लाजमी नहीं हो सकता कि अगर हम चाहें कि तमाम की तमाम कंडीशंस मॉडल और प्रोटोटाइप की क्या हो जाएं जी, सेटिस्फाई हो जाए। कुछ के अंदर क्या हो जाता है जी, एक चीज़ डोमिनेंट हो जाती है, दूसरी नहीं होती। तो इस चीज़ को या इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या देखते हैं, कुछ हमने मॉडल लॉ कुछ डेवलप हुए होते हैं, तो हम उनको देखते हैं जी। इसके अंदर है जी, फॉर डायनामिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप द रेशियो of corresponding forces acting at the corresponding point in the model and prototype should be equal. The ratio of forces on dimensionless number, it mean for dynamic similarity, क्योंकि जो डायनामिक सिमिलरिटीज़ के अंदर हमने देखा जो चीज़ हम कंसिडर करते हैं वो फोर्सेस करते हैं, बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप the dimensionless number should be same for model and prototype, but it is quite difficult to satisfy the condition that all the dimensionless number re Reynold number, Froude number, Weber number, Euler number and Mach number are the same for model and prototype. Hence model are designed on the basis of ratio of forces which is dominating in the phenomena. The law in which model are designed for dynamic similarities are called as model law or law of similarities. इसके में हम देखते हैं जी, फोर्सेस की बेस के ऊपर कुछ हम क्या करते हैं जी, लॉज को डेवलप करते हैं, और वो लॉ उन्हीं फोर्सेस के नाम के साथ हैं, रेनॉल्ड मॉडल लॉ, फ्राउड मॉडल लॉ, यूलर मॉडल लॉ, वेबर मॉडल लॉ और मैक मॉडल लॉ। फर्स्ट वन इज द रेनॉल्ड मॉडल लॉ. The Reynold model law is the law in which models are based on Reynold number. Model based on Reynold number include, first one is pipe flow, second one is the resistance experienced by submarine एयरप्लेन फुली इमर्स्ड बॉडी। इसके अंदर हम देखें एक पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, पाइप वॉल की वजह से, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स की अट्रैक्शन की वजह से उसे कुछ ना कुछ क्या हो जाती है जी, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। दूसरी क्या हो जाती है, जो सबमरीन है या एयरप्लेन है, जो उसके बाद कुछ फुली इमर्स्ड बॉडीज़ हैं, उसको क्या हो जाता है, जब वो मूव कर रही होती हैं तो उनको एयर की या किसी कुछ ना कुछ उसको जब वो या कोई एयरप्लेन है जिस वक्त वो टेक ऑफ कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को क्या फेस करना पड़ता है।
एज डिफाइन, जैसे हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि यूलर रेनॉल्ड नंबर को, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है हमारे पास, ये रेशो होती है किसके दरमियान, इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस के दरमियान। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या हो जाते हैं जी, विस्कस फोर्सेस क्या हो जाते हैं जी, प्री डोमिनेंट है। मॉडल आर डिजाइन फॉर डायनामिक सिमिलरिटी ऑन रेनॉल्ड लॉ which state that Reynold number of model must be equal to Reynold number for the prototype। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जी किस किस तरह ना ये प्रोसेस होता है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वी एम क्या है जी, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड मॉडल है। उसके बाद डेंसिटी है, जो हमारे पास डेंसिटी है क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर थे हमने देखा, रो वी एल आर डी डिवाइडेड बाय म्यू एम। तो इसके अंदर सिमिलर हम लेंगे, मॉडल की लेंगे और ये प्रोटोटाइप की लेंगे। तीन चीज़ें, ये डेंसिटी मॉडल की है, वेलोसिटी मॉडल में है, और लेंथ ये जो है क्या लेंथ या कोई लीनियर डिमेंशन जब पाइप के केस में लेंगे तो हम उसके क्या कहेंगे जी, डायमीटर लेंगे। और इसी तरह प्रोटोटाइप की डेंसिटी, वेलोसिटी, लेंथ और जो हमारे पास है जो डेंसिटी है उसको हम देखेंगे जी, वो हमारे पास क्या आती है। इसको हम देखते हैं जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जो है हमारे पास ये रेशो। उसके बाद जो हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको दूसरी साइड पे लेके आ जाते हैं। तो डेंसिटी प्रोटोटाइप की वेलोसिटी लेंथ उसको डिवाइड कर देते हैं मॉडल की डेंसिटी विस्कोसिटी, और उससे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाता है ये हमारे पास देखें। अगर हम डेंसिटी को प्रोटोटाइप और मॉडल की डिफाइन करें तो रो आर वी पी डिवाइड बाई वी हमने देखा था ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के अंदर है। इसको ये हमारे पास इसको लेंथ और इसको ज्योमेट्रिक के अंदर इसको हमने देखा था कैनोमेटिक के अंदर। तो हमारे वी आर एल आर ये हमारे पास बन जाएगी म्यू आर, ये हमारे पास सबको ये इक्वल टू क्या है जी 1 है। तो ये उसका रिलेशन लिखा है किस किस को हमने किस किस के इक्वल लिया है। और हमारे पास हमने देखा जो हमारे पास ये एल आर है, एल आर हमने देखा जी ये स्केल रेशो है किसकी, जो हमारे पास एल आर है ये जो स्केल रेशो है किसकी, लीनियर डिमेंशन की है। उसके बाद ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी किया गया है डेंसिटी रो आर इज स्केल रेशो किसकी है, डेंसिटी की है। वी आर क्या है ये हमारे पास वेलोसिटी की जो स्केल रेशो है। उसके बाद एल आर है लीनियर डिमेंशन है, और म्यू आर क्या है जी ये हमारे पास विस्कोसिटी की क्या है जी ये स्केल रेशो है। और इसी तरह हम क्या कर जानते हैं जी, स्केल रेशो, टाइम, एक्सलेरेशन, फोर्स और डिस्चार्ज की क्या कर सकते हैं इस मॉडल से ऑब्टेन कर सकते हैं। जब हमें ये सारी चीज़ें हमें नोन होंगी तो इसी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसको इजीली क्या करेंगे, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अभी यहाँ अगर हमारे पास टाइम स्केल रेशो अगर हम लें तो देखें ये टाइम स्केल रेशो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ये हमारे पास बराबर होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ हमारे पास टाइम को अगर हम दूसरी साइड पे ले आए तो हमारे पास टी आर इज इक्वल टू एल आर डिवाइडेड बाई वी आर। तो इसी तरह एक्सप्रेशन हमारे पास इज इक्वल टू होता है वी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई टी आर। अब हम फोर्स की स्केल रेशो निकालें तो फोर्स हमारे पास होता है मास मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सप्रेशन एम आर मल्टीप्लाई बाई ए आर। अब एम आर की हमारे पास वैल्यू पता है हमें, एम ए डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं जी, वॉल्यूम को अगर हम एक्सलेशन वाले टाइम से यहाँ से हम जो डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा रो ए टी वी टी मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए आर। तो हमारे पास रो एल आर स्केयर वी आर मल्टीप्लाई बाय ए आर। अगर हम डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज हमें पता है रो ए आर वी आर। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से हमारे पास एल स्केयर मल्टीप्लाई वी आर। ये हमारे पास कुछ रेशोज़ हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये मेथड है कि हम उसको किस तरह ड्राइव करते हैं, और ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सारी रेशो नोन होनी चाहिए। अभी किस तरह ये हम इम्प्लीमेंट होती हैं ये रेशोज़, किससे हम कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके अंदर ये बताया गया है। ये प्रॉब्लम है 12.5। इसके अंदर हम देखते हैं जी ये पाइप ऑफ डायमीटर, एक पाइप है जिसका डायमीटर 1.5 मीटर है, इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एन एल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90 एंड विस्कोसिटी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 एट द रेट ऑफ जो डिस्चार्ज लिया हुआ है वो 3000 लीटर पर सेकेंड। टेस्ट वर कंडक्टिंग ऑन ए 15 सेंटीमीटर diameter pipe using water at 20 degree centigrade. Find the velocity and rate of flow in mud. Viscosity of water at 20 degree centigrade is equal to 0.01. अब यहाँ पे अभी देखें हमारे पास ये
ये इनिशियली हमारे पास ये हमारे प्रोटोटाइप की डिमेंशन गिवन है, उसके बाद कुछ हमारे पास मॉडल की हैं जो हमारे पास देखें वेलोसिटी जो हमारे पास प्रोटोटाइप है उसका हमें डिस्चार्ज गिवन है। इसी तरह हमने जो रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज हमने किसका करना है, मॉडल का फाइंड करना है। उसके बाद मॉडल की और क्या हमने फाइंड करनी है, साथ इसके साथ हम वेलोसिटी भी हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है कि मॉडल की क्या होगी। अब इसी तरह ये अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम देखते हैं जी हमारे पास गिवन क्या क्या। गिवन सबसे पहले ये है जी पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। इसका मतलब है जी जो 1.5 डायमीटर का प्रोटोटाइप का जो डाया है 1.5 मीटर है। उसके बाद जो विस्कोसिटी दी हुई है, विस्कोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² है। उसके बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है उसकी 0.90 है। उसके बाद डिस्चार्ज है 3000 लीटर पर सेकंड है। जब हम लीटर को कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर मीटर क्यूब के अंदर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास अब हम हमारे पास एल की जो हमारे पास डेंसिटी फाइंड करना चाहें, डेंसिटी एल की करने के लिए जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमें नोन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ एल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं कि 1000 है, तो डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप या हम उसको एल को निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एल की गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद जो मॉडल का जो हमारे पास डायमीटर है उसने कहा जी टेस्ट वर्क कंडक्टिंग ऑन 15 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। तो ये हमारे पास क्या, जिसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट हम किसके ऊपर होते हैं, हमेशा मॉडल के ऊपर होता है। तो मॉडल का जो डायमीटर है वो है 15 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी 1000 उसको 100 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 0.15 मीटर। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ वाटर ये हमें गिवन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। इसको अगर हम कन्वर्ट करें उसके अंदर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई 10⁻⁻² पर, और जो हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं UM, ये किसकी है, वो जो हम इसके लिखते हैं मॉडल की, जो हमारे पास मॉडल ये है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वाटर की डेंसिटी हमारे पास नॉन होती है, ये हमारे पास 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब हम कहते हैं पाइप फ्लो के अंदर डायनामेटिक सिमिलरिटी अगर हम कैसे अपटेन कर सकते हैं। डायनामेटिक सिमिलरिटी अपटेन करने के लिए हम कहेंगे कि रेनॉल्ड नंबर मॉडल का और प्रोटोटाइप का ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ये कैसे इक्वल हो, रेनॉल्ड नंबर हमारे पास इस साइड पे रेनॉल्ड नंबर लिखेंगे दोनों साइडों पे, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ये मॉडल का है और ये रेनॉल्ड नंबर प्रोटोटाइप का है। रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है जी ρ/V/T और म्यू, ये हमारे पास उसके साथ mm लगा देंगे और दूसरी साइड पे हम p लगा देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जी कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो हमें नोन है और कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो हमें अननोन है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन, ये हमारे पास थी, ये हमारे पास अगर हम करेंगे जी VM और VP, अगर हम यहाँ से VM वेलोसिटी क्योंकि हमें फाइंड करनी है तो हम वेलोसिटी के रेशो में इसको लिख देंगे VM और डिवाइड बाय कर देंगे VP इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय डेंसिटी और डेंसिटी ये हम निकाल चुके हैं। इसको 900 आई थी, ये हमारे पास 1000 है। डायमीटर ऑफ पाइप इज 1.5 डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ मॉडल ये हमें गिवन था, ये 0.15 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ मॉडल ये हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप भी गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी मॉडल और प्रोटोटाइप उसके दरमियान रेशियो ये आ जाती है हमारे पास 3। अब हमारे पास अगर देखें VM और VP, अगर हमारे पास VP नोन हो तो हम VM इजीली क्या कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं। कैसे, तो VP क्या है हमारे पास क्या हो जाती है जी एरिया डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो इन प्रोटोटाइप, ये हमें गिवन था, ये 3 हमारे पास ये मतलब 3000 लीटर पर सेकंड था। जब हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बन गया 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब सेकंड टर्म जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर वो है जी हमारे पास एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। एरिया का हमारे पास फार्मूला है π/4d²। तो हमारे डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप इज 1.5, तो इसका हम क्या कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय π/4 मल्टीप्लाई बाय 1.5²। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2.25 इज इक्वल टू 1.69 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो हमारे पास VP हमारे पास आ गई तो हम इसको क्या कर देंगे जी, जो रेशो थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, VM डिवाइड बाय VP इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ये VM इज
इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ वी पी इज़ 1.697। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है जी 5.091 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज़ हमने फाइंड करनी थी, जो वेलोसिटी थी मॉडल के अंदर, वो क्या आई है, वेलोसिटी हमारे पास है 5.091 मीटर पर सेकंड। और सेकंड थिंग हमें फाइंड करनी थी जो रेट ऑफ फ्लो। देखिए जब हमारे से वेलोसिटी आ गई तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डाया नोन है तो हम रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास Q इज इक्वल टू होता है ए बी। अब हमें मॉडल का फाइंड करना है तो हम लिखेंगे QM इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई VM। अब एरिया का हमारे पास फार्मूला पाई/4 डी स्केयर। अब डी हमारे पास AM है तो हमारे डी भी M आएगा। DM हमारे पास नोन आई है, हमारे पास 0.15 है, तो हम पाई/4 0.15 स्केयर मल्टीप्लाई में लिख देंगे VM हमारे पास है 5.091, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.0899 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 0.0899 मल्टीप्लाई। अगर हम इसको ये लीटर में कन्वर्ट करें तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 89.9 लीटर पर सेकंड। इसके बाद इसी तरह का हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास प्रॉब्लम 12.16 state that water is flowing through a pipe of diameter 30 centimeter at the velocity of 4 meter per second. Find the velocity of oil flowing to another pipe of diameter 10 centimeter if the condition of dynamic similarity is satisfied between two pipes. The viscosity of the water and oil is given as 0.01 pairs and 0.025 pairs. The specific gravity of oil is 0.8. अब यहाँ हमारे पास क्या है जी, हमारे पास दो पाइप हैं। हम उसको क्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं, हम इसको नाम दे देते हैं पाइप 1 का नाम, दूसरे को पाइप 2 का नाम, ताकि हमारे पास जो डायमेंशन है वो मिक्स ना हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर दोनों के अंदर क्या है जी, लिक्विड हमारे पास क्या है जी डिफरेंट है। तो एक के अंदर हमारे पास वाटर है, दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है जी ऑयल है। तो यहाँ हमारे पास लिखते हैं जी गिवन क्या जी पाइप 1 के केस में जो हमारे पास लिक्विड है वो हमारे पास क्या है जी वाटर है। तो उसके अंदर जो उसके बाद डाया है वो हमारे पास डाया देखें जी हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, और जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। जो विस्कोसिटी यहाँ पे गिवन है वाटर की 0.01 है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.01 डिवाइड बाई 10। तो डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी वाटर की हमें नोन है, ये हमारे पास 1000 होती है। इसी तरह पाइप 2 के लिए तो लिक्विड जो हमारे पास है वो ऑयल है, उसके लिए जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर ये हमारे पास अनदर पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर जो उसका डाया है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। इसी तरह हमें क्या करना है जी, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है यहाँ पे हमारे वेलोसिटी ऑफ ऑयल जो लिक्विड था ये हमारे पास था पाइप 2 के अंदर। तो हम क्या करेंगे जी, वेलोसिटी ऑफ ऑयल हमें क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। तो उसके बाद विस्कोसिटी V2 हमें ये गिवन है 0.025। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें जब डेंसिटी फाइंड करनी होगी ऑयल की, वाटर की तो हमें नॉन थी कि 1000 है, इसके लिए हमें उसने क्या दिया है, इसके लिए उसने हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑयल की जो हमारे पास डेंसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पर सिर्फ एक चीज़ अननोन है जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, कि इसके दरमियान जो पाइप 2 है उसके अंदर जो हमें वो क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि डायनामिक सिमिलरिटी क्या है जी, एग्जिस्ट करती है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे जी, अब रो भी है हमारे पास, वी भी है, डी भी है, म्यू भी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा जी, रेनॉल्ड नंबर से हम इसको क्या करेंगे जी, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे जी। अभी हम देखते हैं हमारे पास रो वी डी 1 डिवाइड बाई म्यू 1 इज इक्वल टू रो 2 वी 2 डी 2 डिवाइड बाई म्यू 2। अब यहाँ हमारे पास देखेंगे जी अननोन क्या है, रो 1 गिवन है, वी 1 गिवन है, डी 1 गिवन है, म्यू 1 is given is equal to rho 2 is also known, d2 is also known, mu 2 is also known. Only unknown thing is v2. V2 is unknown to us, so we may write v2 is equal to p1 density divided by rho 1 divided by rho 2 is multiplied by d1 divided by d2 multiplied by
mu2 डिवाइड बाई mu1 मल्टीप्लाई v1. यहाँ हमारे पास all variable are known to us. Now putting the value of all the variables in this equation, we have know the value of row 1 is 1000, row 2 is 800, d1 is 0.3, and value of d2 is 0.10, value of mu2 is 0.025 डिवाइडेड बाई 10. हम इसको ऐसे यूनिट में करेंगे क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें बाकी ऐसे यूनिट के अंदर हैं. mu1 0.01 divided by 10 multiply v1 was also known to us. v1 was 4 meter per second. तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो जी 37.5 मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है पाइप टू दूसरे पाइप के अंदर, वो क्या हो गई, वो हमारे पास आती है 37.5 मीटर पर सेकंड. इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं जी. थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सबमरीन एंड इट्स मॉडल इज 30:1. अब एक सबमरीन है जो और उसका एक मॉडल है, उसके दरमियान एक रेशो गिवन है, वो है जी 30:1. द स्पीड ऑफ सबमरीन, ये देखिए मेंशन किया हुआ है उसने सबमरीन का, इस तरह उसने प्रोटोटाइप का नाम दिया है, और दूसरा जिसके ऊपर बनाना है वो हमारे पास क्या है जी, एक मॉडल है. मॉडल को कहाँ पे टेस्ट किया गया है, विंड टनल के अंदर. मॉडल इज टू बी टेस्टेड इन अ विंड टनल. फाइंड द स्पीड ऑफ एयर इन वन विंड टनल. ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ड्रैग को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, बिटवीन द मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप. टेक द वैल्यू ऑफ kinematic viscosity फॉर सी वाटर एंड एयर एज 0.012 स्ट्रोक्स एंड 0.016 स्ट्रोक्स रेस्पेक्टिवली. और सी वाटर के लिए हम लिखेंगे 0.012, जबकि हमारे पास एयर के लिए वो जो है 0.016. द डेंसिटी ऑफ सी वाटर and air is given as 1030 kilogram per cubic meter and 1.24 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर रेस्पेक्टिवली. इसके अंदर जो डेंसिटी है किसकी, देखें सी वाटर की है 1030, वेयर एज डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.24 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारे पास इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें जी, हम इसी तरह जो पाइप है या दो पाइप हैं या मॉडल प्रोटोटाइप क्यों है, हम उनको सेपरेट उनकी जो एक टेबल बनाएंगे, इस तरह एक चार्ट बना लेंगे वैल्यू सिंपल, उसके नाम लिख लें. तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहती है. इसके अलावा जो हमारा प्रोटोटाइप सबमरीन है और उसकी मॉडल है, उस प्रोटोटाइप के अंदर जो स्पीड है वो गिवन है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है. अब जो इसके अंदर फ्लूइड है वो सी वाटर है. सी वाटर के अंदर जो kinematic विस्कोसिटी थी वो 0.012 स्ट्रोक्स गिवन थी. अब इसको जब कन्वर्ट करते हैं स्ट्रोक को, ये हमारे पास होता है जी स्ट्रोक इसको सेंटीमीटर पर सेकंड, वन स्ट्रोक हमारे पास इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है. जबकि जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻4 से, जहाँ इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.012 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड. अब जो इसके अंदर इसकी डेंसिटी थी, डेंसिटी भी हमें प्रोटोटाइप की वहाँ थी, डेंसिटी प्रोटोटाइप की 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. फॉर मॉडल के लिए जो हमारे फ्लूइड है, इसको क्यों हमने क्या किया जी, विंड टनल के अंदर चेक किया, जो फ्लूइड है उसके अंदर वो एयर है. kinematic विस्कोसिटी मॉडल की जो है हमारे पास 0.016 स्ट्रोक्स. सिमिलरली जिस तरह हमने इसको प्रोटोटाइप के कन्वर्ट किया था, इसको हम मॉडल में कन्वर्ट करेंगे. ये हमारे पास हो जाएगा 0.016 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड. और जो हमारे पास इसकी डेंसिटी होगी, मॉडल की डेंसिटी भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो है हमारे पास 1.25 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. अब देखें प्रोटोटाइप की भी हमें लेंथ गिवन है, मॉडल की भी गिवन है. तो यहाँ से हमारे पास हम एल आर क्या करेंगे जी, फाइंड कर सकते हैं. एल आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एल पी डिवाइडेड बाई एल एम. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी एल पी है हमारे पास और डिवाइड बाई वी एम, ये हमारे पास गिवन है, जो ये हमारे पास है 30. अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन था वो है ये रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सब मरीन एंड इट्स मॉडल. यहाँ पे जी लेंथ ऑफ सब मरीन हम क्या लिखते हैं जी, लेंथ ऑफ
प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल, ये इज इक्वल टू 30:1। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ये 30:1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारे पास उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एयर इन मॉडल, तो जो हमारे पास वो है, वो उसको हम नाम देंगे वी एम का। अब हम जानते हैं डायनामेटिक अगर सिमिलरिटी है बिटवीन मॉडल एंड सबमरीन, तो जो विस्कस रेजिस्टेंस क्या करेगी ओवरकम करने के लिए, तो फॉर फुली सबमर्ज सबमरीन रेनॉल्ड नंबर और मॉडल का और प्रोटोटाइप का क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा कि रेनॉल्ड नंबर अगर प्रोटोटाइप और मॉडल का सेम हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास एक वी एम फाइंड करना है। वी एम कैसे फाइंड होगा, देखेंगे डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप गिवन, velocity of prototype given, diameter of prototype is also known to us divided by यहाँ हमारे पास viscosity of prototype is equal to rho density of prototype, density of model, diameter of model divided by viscosity of model। तो जब हम इसको या हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, वी पी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, वी पी डी पी डिवाइड बाई डेंसिटी को हम डिवाइड कर दें विस्कोसिटी, तो ये हमारे पास यहाँ इसको हम लिख सकते हैं वी पी डी पी डिवाइड बाई म्यू डिवाइड बाई रो इंटू पी। इसी तरह हम जब हमने इसको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, तो इसको भी हम इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, वी एम डिवाइड बाई म्यू डिवाइड बाई रो इंटू वी एम। या हम इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कैनामेटिक विस्कोसिटी गिवन है। अगर विस्कोसिटी गिवन होती तो हम सीधा विस्कोसिटी लिखते। अब हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट शेप में लिया है, तो हमारे पास जानते हैं जब विस्कोसिटी को डेंसिटी पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कैनामेटिक विस्कोसिटी होती है, जो हमारे पास बन जाएगा वी पी डी पी डिवाइडेड बाई कैनामेटिक विस्कोसिटी प्रोटोटाइप की इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मॉडल, डायमीटर ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय कैनामेटिक विस्कोसिटी ऑफ मॉडल। तो यहाँ हमारे पास अब वी एम किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी, तो ये कैनामेटिक विस्कोसिटी मॉडल की 0.016 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ डिवाइड कर देंगे वी पी से, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास अब हम देखते हैं जी जो डाया है, क्यों, लेकिन जब हम जानते हैं एल आर, इस वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाए एल आर, हम क्वेश्चन में जानते थे जिस वक्त हम ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी देख रहे थे कि एल पी डिवाइडेड बाई एल एम इज इक्वल टू एल आर इज आल्सो इक्वल टू डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ मॉडल। हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज डायमीटर ऑफ पाइप डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ मॉडल। तो ये रेशो हमारे पास 30 के बराबर है। टोटल रेशो के जगह हम क्या पुट कर देंगे 30, और वी पी भी हमें नोन है, वी वेलोसिटी ऑफ जो प्रोटोटाइप है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ पे भी 10⁻⁻⁴ है, ये भी 10⁻⁴ है, ये बहुत क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.016 डिवाइडेड बाय 0.012 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 400 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हमारे पास आ गई क्या, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसकी, हमारे पास मॉडल की। इसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो है जी, इसके बाद ये ड्रैग फोर्स क्या है। अब ड्रैग फोर्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है जी, ड्रैग फोर्स हमारे पास हमें पता है जी, ये अभी हमने ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ हमने फाइंड करनी है तो हमें उस जो किसके बराबर है, किस तरह की उसकी इक्वेशन बनेगी वो ड्राइव करना इंपॉर्टेंट है। अब रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्सेस फाइंड करनी है, रेशियो जब फाइंड करनी होती है इसका मतलब है फोर्स प्रोटोटाइप की डिवाइडेड बाय मॉडल की। अब हमें इस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ एम फाइंड करना है। अगर हमें एफ पी और एफ एम की वैल्यू पता होगी तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब हम जानते हैं ड्रैग फोर्स किसी भी चीज़ की किसके बराबर होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास है ये हमारे पास रो एल क्यूब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
ये हमारे पास होता है जी मास, एक्सेलरेशन हमारे पास है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ हमारे पास एल को हम एल क्यूब का हम इसको इसकी सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्केयर मल्टीप्लाई बाय एल लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो मल्टीप्लाई स्केयर मल्टीप्लाई एल डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई वी। अब यहाँ हमारे पास इसको अगर हम इसको एल डिवाइड बाई टी हमें पता होता है ये वेलोसिटी के बराबर होता है, डिस्टेंस और टाइम को हम वेलोसिटी के बराबर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय एल स्केयर मल्टीप्लाई बाय वी स्केयर। तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई ड्रैग फोर्स की। अब अगर हम चाहते हैं कि एफ पी हो तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप और वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। जबकि अगर हम चाहते हैं कि जी मॉडल की हो तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल और उसके बाद जी वेलोसिटी ऑफ मॉडल। इसको हम क्या लिख लेंगे जी, ये हमारे पास आ जाएगा एफ पी डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू यहाँ डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मॉडल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का स्केयर वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप स्केयर, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारे पास डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। सिंप्लीफाई करने से यहाँ से अब देखें डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, लेंथ को लेंथ से, वेलोसिटी को वेलोसिटी से। डेंसिटी रो पी डिवाइडेड बाय रो एम मल्टीप्लाई बाय एल पी और एल एम होल स्केयर मल्टीप्लाई वी पी और वी एम होल स्केयर। तो यहाँ हमारे पास हम जानते हैं जी ये डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इज 1030 वेयर एज डेंसिटी ऑफ मॉडल इज 1.24 मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास इस तरह करने का, क्योंकि ये हमारे पास एक रेशो है, हमारे पास सिर्फ अलग अलग वैल्यू नहीं है एल पी और एल एम की, तो ये हमारे पास रेशो थी 30:1। ये हमारे पास आ जाएगा 30 स्केयर मल्टीप्लाई वी पी डिवाइड बाई वी एम। वी पी की भी हमें वैल्यू जो है ना क्वेश्चन के अंदर हमें इनिशियली गिवन थी, जो क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू गिवन थी वी पी की वो थी 10 मीटर पर सेकंड। और वी एम की जो वैल्यू थी वो हमने ड्राइव की इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ वी एम, इस वी एम की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 400 मीटर पर सेकंड। वो हमने क्या किया जी इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, वी पी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई वी एम इज इक्वल टू 400। इसका क्या लेंगे जी हम स्केयर पे, इसको सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 467.22। ये हमारे पास आंसर आ गया जी इसका। इसी तरह जी इससे रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन हैं तो ये आप लोग खुद कीजिएगा। इसके अंदर भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखता हूँ जी। शेप 300 मीटर सिमिलर क्वेश्चन है, ये बड़ी इजी क्वेश्चन है। शेप 300 मीटर लॉन्ग मूव्स इन अ सी विद वाटर whose density is 1030 kilogram per meter cube. One ratio to 100 model of this ship is to be tested in a wind tunnel. The velocity of air in the wind tunnel around the model is 30 meter per second and the resistance of model is 60 Newton. Determine the velocity of ship in sea water and also resistance of ship in sea water. The density of air is given as 1.24 kilogram per cubic meter. Take the kinematic viscosity of sea and air as 0.012 stroke and 0.018 stroke respectively. अभी आपने इसी तरह का ये चार्ट बना लेना है, इसके अंदर प्रोटोटाइप का लिखना है और मॉडल का लिखना है जी। प्रोटोटाइप की जो जो आपको गिवन है, जैसे हमारे पास लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, उसके अलावा जो लेंथ इसी तरह जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पर लिख लेनी है। इस तरह हमने उसको इक्वेशन नंबर से हम उसको इक्वेशन से पुट कर देनी है वैल्यू, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारे पास थे रेनॉल्ड मॉडल लॉ हमने देखा, उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे। इसके बाद हम सेकंड लॉ को देखेंगे जी, हमारे पास जो फ्राउड मॉडल लॉ है वो क्या है जी।